کہ سینیٹر حامد خان کو چیئرمین پی ایس سی بنایا جا رہا ہے، تو یہ کیا تفصیلات ہیں؟ کیا یہ ان کو بنایا جا رہا ہے، اور کیا سینیٹر کو بنایا جا سکتا ہے چیئرمین پی ایس سی؟ کیونکہ گزشتہ برس ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ بڑی مشکل سے سینیٹرز کو جگہ دی گئی تھی پارلیمان کی کمیٹی کہہ کے، تو کیا سینیٹر چیئرمین پی ایس سی بن سکتا ہے؟ سردار لطیف کوسہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، لیکن دن کے 10-15 منٹ وہ حالت وجد میں ضرور آتے ہیں اور پھر وجدانی باتیں کرتے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے وہ سینیٹر کو سربراہ بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے تو آئینی ترمیم درکار ہوگی، بلکہ پوری آئین کا خاکہ ہی چینج کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ غلطی کوسہ صاحب کی نہیں ہے، غلطی اس رپورٹر کی ہے، انہوں نے حامد رضا کے بجائے حامد رضا صاحب کے بجائے حامد خان کہہ دیا۔ تو حامد رضا کا نام آ رہا ہے کیا؟ نہیں، نام تو کافی سارے آ رہے ہیں نا، سب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو اگر نام آ رہے ہیں آنے دیں۔ خان صاحب جو ہیں اور پارٹی نے آج پارلیمانی کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا کہ ایسے تمام جو ریومرز ہیں، افواہیں، یہ ختم ہونی چاہیے۔ چیئرمین صاحب نے اور چیف وپ نے اس پہ باقاعدہ بیان دیا، اور آلریڈی آج اسپیکر صاحب سے ہم نے ملاقات کی، فارملی ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے خان کی جو چوائس ہے اس سے آگاہ کیا۔ تو لہذا الیکٹرانک میڈیا پہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں، حقیقت سے ان کا دور دور کا واسطہ۔ تو آپ چیئرمین کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ آج ووٹنگ بھی ہوگی، اس کے علاوہ باقی امور بھی ہیں وہاں اس کو چلانے کے لیے؟ بہت ساری کمیٹیز ہیں، صرف یہی ایک کمیٹی سب کو کیوں نظر آ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں، اتنی کوئی اس میں خاص بات کیا ہے، لیکن صرف چونکہ میری ذات اس میں انوالو ہیں تو لوگ مہربان اس کو متنازع بنا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نہیں دیکھیں، اربوں خربوں روپے کا آڈٹ کا معاملہ ہے، کئی لوگ آپ سے خائف تو نہیں ہیں؟ ہوگی، بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری مافیاز ہیں، اور ان کو ڈر ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی گردن پہ آتا ہے۔ اچھا، شیر افضل مروا صاحب، ایک سوال، آج خواجہ آصف صاحب سے آپ کی کہاں ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئی؟ ایوان میں ہی ملاقات ہوئی، اور خواجہ آصف صاحب سے ہماری یہ ایوان کے اندر جو بزنس ہے اس حوالے سے، چونکہ وہ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کمیٹیز کے حوالے سے، تو یہ بات چیت ہوئی۔ اچھا سر، ایوان میں اس طرح بات چیت ہوتی ہے، کیا اس کو عملی طور پر آگے بڑھایا جائے گا یا صرف کل میرے خیال میں کل 11 بجے یہ فائنلائز ہوگی، کیا یہ کمیٹیز کب؟ اور اچھا، چیئرمین پی ایس سی کے حوالے سے آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذات انوالو ہے، شاید اس لیے اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے، فائنل کون ہوگا آپ کی نظر میں؟ بھائی وقت تو آنے دینا، ابھی اس میں ٹائم ہے نا، اور سارے کمیٹیز کے چیئرمین فائنل ہونے ہیں، تو صرف اس کمیٹی کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ ہم حامد رضا سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہو۔ ایران کے صدر آئے اور چلے گئے، لیکن ہمارے مسلط شدہ وزیر اعظم صاحب اور ایرانی صدر دونوں سے ہماری توقع تھی قوم کی کہ یہ دونوں بیٹھ کے قوم کو آگاہ کرتے کہ 780 کلومیٹر پہ مشتمل جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو پروجیکٹ تھا، جو 2009 میں ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے لیے $150 ملین رشید نے دینے کا وعدہ کیا، اور جس کے 80 کلومیٹر ہم نے 2 سالوں میں یعنی 2011 تک بنانے تھے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ایران ہم کو سب سے سستی گیس دے سکتا ہے، ہمارے جو گیس کے ریزرو ہیں وہ 12 سال پاکستان کا کام چلا سکتے ہیں۔ جس اندازے سے یہ آبادی بڑھ رہی ہے اور ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری پہ گیس پہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے، تو 12 سال کے بجائے یہ 8 سالوں میں 8 سال کے بعد پاکستان میں گیس ہوگی ہی نہیں۔ تو لہذا ایرانی سینکشن کی وجہ سے اور ڈونلڈ لو کے گزشتہ ماہ کی اس بیان کی وجہ سے کہ پاکستان جو ہے وہ اس گیس پروجیکٹ کے منصوبے سے باز آ جائیں، ہم اپنا نقصان کیے جا رہے ہیں ہمیں۔ اور اگر پاکستان اس منصوبے پہ نہیں جاتا ہے، عمل درآمد نہیں کرتا ہے ایگریمنٹ کے اس حصے کی جس کی ذمہ داری پاکستان پہ عائد ہوتی ہے، ایرانی پارلیمنٹ نے اپنی حکومت پہ زور ڈالا ہے کہ پاکستان جو ہے اگر اس سے آگے نہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ معاملات کو منطقی انجام تک پہنچا کے اس ایگریمنٹ کو انڈو کیا جائے۔ اس کا خمیازہ ہمیں $17 بلین جرمانے قیمت میں ادا کرنا ہوگا۔ تو لہذا یہ اسٹاک ایکسچینج کتنا جو ہے پلا بڑا ہے، اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم
वेवर लेते, अमेरिकन गवर्नमेंट से वन टाइम वेवर मांग लेते कि जी हमें इन सेक्शन से वेवर दे, हमारी जरूरत है, हम माशी बोझ तले दबे जा रहे हैं। इससे कबल DGISPI ने जब गुज़श्ता पीडीएम की हुकूमत आई थी और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया था तो उन्होंने कहा कि देखें स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया और अभी भी ऊपर चला गया। असल सवाल ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने का मैशत की बेहतरी से कोई ताल्लुक बनता है? हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, उसका ऊपर जाना नीचे आना इसी तरह अनप्रिडिक्टेबल है जिस तरह इस्लामाबाद का मौसम होता है। अच्छी वाली धूप निकली होती है, धड़ाम से बारिश शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ये जो स्टॉक एक्सचेंज जो आज बुध की हैं और उछली हैं, 2 दिन बाद की खबर याद रखो ऐसी गिरेगी। हमारी कोई माशी रोड में है ही नहीं। कौन सा हमारा माशी मुस्तकबिल है? $8 बिलियन की आपने IMF से लोन लेके जो $8 बिलियन सालाना रिमिटेंसीज की मद में आप नुकसान कर रहे हैं। $6 बिलियन आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आपके एक्सपोर्ट गिर गए। $14 बिलियन तो आपका ये नुकसान है। तो ये कहाँ से पूरा होना है? किसी के पास कोई आइडिया है? कौन सा आपका मुआशी रोड मैप, आपका कोई मुआशी मुस्तकबिल ही नहीं है जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। पाकिस्तान के तमाम बैंकों की और हमारी FDR की और तमाम वसाइल की हैसियत इतनी है कि हम सिर्फ लिए गए कर्जे का सूद जो है अदा करने के काबिल है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ नापसंदीदा फैसले लेने होंगे। आपके ख्याल में वो नापसंदीदा फैसले कौन से हो सकते हैं? नहीं, उनके तो सारे फैसले नापसंदीदा हैं। यानी जो अभी ये वजीर आजम बना है, 2 महीने में 3 इन्होंने फैसले लिए हैं। नंबर 1, अफगानिस्तान के साथ इन्होंने ताल्लुकात का सत्यानाश कर दिया। नंबर 2, पाकिस्तान के दौरे पे आई हुए ईरानी सदर की मौजूदगी में जुर्रत तक नहीं हुई कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की लिए आवाज उठा सके, क्योंकि अमरीकियों ने जो है थ्रेट दिया हुआ है कि खबरदार इस पे बात नहीं करनी है। और तीसरा, ये जिमनी इलेक्शन करा दिए। और जो चौथा है, उन्होंने पेट्रोल और गैस और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ा दी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं। एक भी पसंदीदा फैसला कोई मुझे बता दे। दूरबीन में जाके ढूंढे। 2 साल से जब से PDM हुकूमत ने खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा बाजवा के ताउन से, आज तक कोई एक फैसला कोई बता दे जो मुल्क के लिए, अवाम के लिए उसमें कोई खुशाइन बात हो। मरवत साहब, हमारी एस्टेब्लिशमेंट में इतनी ताकत है कि वो अमेरिका के आगे जाकर बात कर सके? इसमें एस्टेब्लिशमेंट में या डमी वज़ीर आज़म जिसको आप कह रहे हैं, इस पर इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका के फैसले के आगे इनकार कर सके? जी माशाल्लाह, बड़ी ताकतवर हुकूमत है और बड़े ताकतवर वजीर आजम हैं। आपने देखा नहीं, कमाल किया इन्होंने। प्यूटन सदर मुंतखब हो गए और मियां शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद तक नहीं दी। अमेरिका में बदौलत नाराज हो जाता। सदर ईरान आए और ईरान गैस पाइपलाइन पे बात तक की जरूरत नहीं हुई। फिर चाइना के साथ जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कभी आपने कोई बात सुनी इनके मुंह से? अमेरिका ने कहा है इस पे बात नहीं करनी है, जबान नहीं खोलनी है। लिहाजा क्या पीती और क्या पीती का शोरबा था। हमारी औकाती क्या है कि अमरीकियों के आगे हम सर उठा सके? सर ये बताएं कि PTI अपोजिशन में इस वक्त ये जमहूर की लड़ाई कब खत्म होगी और अवामी मसाइल के ऊपर कब बात होगी? आप क्या समझते हैं कि PTI जो है बजट के दौरान क्या अवामी मसाइल के साथ खड़ी होगी? नहीं, बजट के दौरान तो गवर्नमेंट ने खड़ा होना है। हमने तो अवामी मसाइल उजागर करने हैं। अभी तक आज तक आपने कोई एक बिल देखा जो आया हो जिसमें अवाम के लिए कोई फलाह और बहबूद का कोई मंसूबा हो? आज स्पीकर साहब के पास गए और हमने कहा हमारे आईन में और कानून में एब्यूज होता है इख्तियारात का। मिसाल के तौर पे दफा 144, डिप्टी कमिश्नर जो है आटे की तरसील पे भी 144 लगाता है, ननबाइयों पे कीमत कम करने के लिए भी 144 लगाता है और PTI को जलसे से रोकने के लिए भी 144 लगाता है। ये 144 नहीं हुआ, वो उम्र यार की एल्बम हो गई, वो क्या कहते हैं उम्र यार की जंबील हो गई। इससे सारी चीजें निकल आती है। ये इस तरह भी कोई कानून होता है? फिर ये 3 MPO को देखिए किस तरह नारवा रवैये से इन्होंने पाकिस्तान भर में इसका नाजायज इस्तेमाल किया। फिर आप ताजीरी कवानीन को देखें। मेरे खिलाफ इन्होंने अटक में पर्चा किया। मेरे खिलाफ सबसे पहले पर्चा अटक में डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने कराया कि मैं और उमेर नियाजी साहब ने उन पे हमला किया, उनकी वर्दी पाड़ दी और उनको मारा पीटा। पहली पेशी पे जज साहब ने मुझे और उमेर नियाजी साहब को बरी कर दिया। लेकिन जो 1 साल हमने भुगता उसकी तलाफी कौन देगा?
हमने जमानतें कराई, हाई कोर्ट गए, जमानतनामे जमा किए, 4-5 दफा अटक गए। ये किस तरह का कानून है? यानी कि मुझे एक नाजायज गलत केस से छुटकारा हासिल करने के लिए 1 साल तक इंतजार करना पड़े। तो लिहाजा ऐसे कवानीन रिवोक होने चाहिए। और अगर इख्तियारात में इबहाम है, मिसाल के तौर पे 3 MPO पे देख ले, यानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने शहरियार अफरीदी को 4 दफा, एक दफा अदालत ने छोड़ा फिर पकड़ लिया, फिर छोड़ा फिर पकड़ लिया, फिर छोड़ा फिर पकड़ लिया। जब उन्होंने छोड़ा तो पिंडी वाले ने पकड़ा, पिंडी वाले से मैंने जब उनको छुड़ाया तो जेलम वाले ने पकड़ा, जेलम वाले से छुड़ाया तो गुवाहाट वाले ने पकड़ा। ये कोई कवानीन का इस्तेमाल है? ये कवानीन को इन्होंने बिल्कुल रकील बनाया हुआ है। इस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ सलूक और रवैया होता है। हमें चाहिए 144, 3 MPO, 16 MPO और वो ताजीरी कवानीन, बिलखसूस FIR के इंदराज जो हैं, जो दफा 154 ताजीरात ज़ाब्ता फौजदारी के तहत रेगुलेट होता है, इनको हमें अपडेट करना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए ऐसे कवानीन बनाने चाहिए कि आज अगर मियां शहबाज शरीफ या मोहसिन नकवी साहब चाहे भी तो किसी भी PTI के बंदे को चाहने के बावजूद भी पुलिस के जरिए गिरफ्तार न करा सके। इसको कानून की हुक्मरानी कहा जाता है, इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। खजाना बारहा ये कह चुके हैं कि अगले माह जब मिशन पाकिस्तान आएगा तो जो आगे बजट की तैयारी होनी है उसमें हम मिशन से मुशावरत करेंगे। मिशन मतलब तैयारी में शरीक होगा। इस पे PTI को कोई कंसर्न नहीं है कि IMF मिशन बजट की तैयारी में शरीक होगा? नहीं, IMF बजट जो है आइंदा के लिए हमारे निकाहनामे भी लिखेगा। IMF जो है आपकी बिजली का बिल बना रहा है, आपकी सुई गैस के बिल जो हैं उनकी मशावरत और उनके डायरेक्शन के तहत बनते हैं। पेट्रोल की कीमतें ओगरा खाक करती हैं, वो तयन IMF बता देता है कि आपने इतनी रेवेन्यू गैसेस की मद में, पेट्रोलियम की मद में जनरेट करनी है। आपके एयरपोर्ट्स, आपकी PIA, आपके कौमी असासे, इन तमाम की नीलामी ये बाकायदा IMF के तहत ये मॉनिटर हो रही है। और ये कभी इम्कान है, बल्कि ये बईद नहीं है कि IMF जो है आइंदा के लिए ये भी कर दे कि शादी ब्याह पे इतने खर्चे होंगे। निकाहनामा जो है वो IMF इस तरह फॉर्मेट दे रहा है कि निकाहनामा इस तरह लिखा जाएगा, प्रोनोट इस तरह तहरीर होंगे। ये भी बईद नहीं है कि IMF यहाँ पे एक बोर्ड लगा दे कि जी जो भी ये मैंने अंदर दाखिल हुआ था इतना चंदा डाल के गुजरे। मरवत साहब इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी लॉन्ग मार्च का कब ऐलान कर रहे हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। लॉन्ग मार्च का तो मैंने सुना था कि पार्टी ने जुमे के लिए ऐलान किया हुआ है और मैं जुमे को एहतजाज की सिलसिले में धीर जा रहा हूँ। लेकिन मैं मीडिया को भी कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में तमाम वर्कर्स को कहता हूँ कि आंखें रखो अपनी लीडरशिप पे और देखो कि कौन सी क़यादत बाहर निकल रही है और कौन सी नहीं निकल रही है। जो नहीं निकल रही है उनका ज़मीर झंझोड़ो, सोशल मीडिया पे उनको बताओ कि खान कहता है मेरे लिए निकलो, और जो नहीं निकल रहे हैं वो खान के अहकामात जो हैं उनको पामाल कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।